Ji, so let's quickly recall what we have studied in the previous class. In the previous class, we initiated our discussion on gravitational fields. And we tried to understand that, we tried to recall what we did in O levels, that is the earth attract every mass towards its center through a force that we call as the gravitational force. फिर AS में हमने थोड़ा सा improve किया था कि it's not just the earth which is attracting every mass towards its center, but it's the mass that also attract the earth with the same force, and they form the third law pair, which is in accordance with Newton's third law of motion. And then we try to broaden our understanding of gravitational force, and we try to understand the idea that it's not just the earth, in fact it's every mass in the universe which is attracting every other mass through a force that we call as the gravitational force. And then we try to understand, no matter if one mass is big or the other mass is small, even then the amount of force that body A will exert on body B, the gravitational force, body B will also exert the same gravitational force on body. Mathematically it can be written as F1 equal minus of F2 or F2 equal minus F1, they both are the same thing. Then we try to understand Newton's law of gravitation, which says that the gravitational force of attraction between two point masses is directly proportional to the product of both the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, and the rule is applicable for 2 point masses, and we try to understand what a point mass is. A point mass is a mass on which we assume that the entire mass is concentrated at the center of the object. And then we came up with an equation F equal capital G m1 m2 over r square, which is used to figure out the gravitational force of attraction between 2 point masses, where capital G is the universal gravitational constant whose value is 6.67 exponent minus 11. Then we looked into a question where we tried to figure out the gravitational force between two comparatively smaller masses, like जिनका mass किसी का 60 था, किसी का 70 kg था. तो हमने कहा कि भाई इस तरह के masses में अगर आप gravitational force निकालोगे तो you will end up with a very small value of force. This is why we do not see considerable force, we do not observe the effect of gravitational force on small masses, because that is actually negligible between small masses. It is only considerable if at least one of the two masses is a huge mass. And again, when I say a huge mass, I do not mean as huge or as big as a car or a bus or a mountain. It has to be as big as a star or as a planet. Then we see considerable amount of gravitational force. So we also looked into a question where we tried to figure out the gravitational force of attraction between the earth and the sun, and that value turned out to be a massive amount of force, something nearly 10 to the power 22 newtons. With this question, you realize that not in every case the gravitational force of attraction is going to be negligible. Rather, it is going to be like genuinely considerable, like it is going to be massive in case of planets and stars. फिर ये भी डिस्कशन हुई थी कि भाई लाइक अगर सन अर्थ पर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो वाई डोंट द अर्थ इज़ लाइक जस्ट अट्रैक्टेड टू द सन, क्यों नहीं अर्थ और सन की मुलाकात हो जाती है और अर्थ भस्म हो जाता है. तो वो भी हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट हैपेंस इज़ कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमे चक्कर खाए. तो जब वो घूमे चक्कर खाए यानी जब वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, so in order to maintain that circular path, it needs a centripetal force, and it is the gravitational force which is providing the necessary centripetal force to keep the earth around the sun. ठीक है ना. तो अर्थ जिस मास के साथ, जो अर्थ का मास है और जिस स्पीड के साथ और जिस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर mv² ओवर r या mr ओमेगा स्क्वायर से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स निकाली जाए अर्थ की in order to stay in the circular path around the sun, और अर्थ पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली जाए with the help of Newton's law of gravitation which is g m1 m2 over r square, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे. तो अर्थ को सर्कुलर पाथ पे टिके रहने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उतनी ही मिल रही है, ना उससे ज़्यादा कि वो सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाए, ना उससे कम कि वो ट्रैक से बाहर निकल जाए. So this was a quick summary of what we studied in the previous class, right? So I hope there are no questions. If there is any question, please feel free to ask so I can move on towards
further discussion. Or just write all clear on chat so I can confidently move on to the next discussion. Everyone. आप लोगों को क्वेश्चन तो नहीं, सारे मेरे साथ हैं? जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता। वो एरो शो कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया था ना, सन इतना बड़ा मास है कि उतनी फोर्स अर्थ भी सन पे लगाता है, बट उससे सन का कोई कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता सन को, बिकॉज सन इज मैसिव. दैट फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन ऑन द सन. नाउ लेट अस come up with a situation where there is a planet of mass m and there is another mass small m which is revolving around the planet. Now please try to understand, Earth is a natural satellite of the sun. Moon is the natural satellite of the earth. सन अर्थ के अराउंड अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है ना, इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है ना, अगेन इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई इंजन नहीं लगा हुआ है, कोई रस्सी से नहीं बंधा हुआ है, कुछ नहीं है, फिर भी मजे से सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है. इनफैक्ट सैटेलाइट कहते ही उस ऑब्जेक्ट को है जो कि किसी भी लाइक मास के अराउंड एक चक्कर मार रहा हो, ऑर्बिट कर रहा हो, और उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही हो, वो कौन प्रोवाइड कर रही हो? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही हो. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे अर्थ और सन तो नेचुरल सैटेलाइट्स है ना, जो आर्टिफिशियल, जो हम जब बचपन से सबने ही सुना होगा सैटेलाइट का नाम, तो सैटेलाइट में कोई इंजन नहीं लगा हुआ होता. वो जो चक्कर काट रहा होता है ना किसी भी प्लैनेट के अराउंड, वो जो भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उनमें कोई इंजन शिंजन नहीं लगा हुआ होता है. एक्चुअली उनको बस लॉन्च करके ऐसे लॉन्च करना होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर जो उनकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो वो उस पॉइंट पर अवेलेबल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए. फिर मस्त 10-15 साल तक वो घूमता रहता है एक सैटेलाइट. सो इन केस ऑफ अ सैटेलाइट, प्लीज रिमेंबर इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स that serves as the centripetal force. So let us assume a situation where there is a planet जिसका मास है कैपिटल M और एक स्मॉल m जो कि सैटेलाइट का मास है, वो उस प्लैनेट के अराउंड घूमे, चक्कर खाए, उस प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करे. सो इट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड फॉर अ सैटेलाइट orbiting a planet, the gravitational force serves as the centripetal force. The gravitational force serves as the centripetal force. So हम कहेंगे it is the gravitational force which is equal to the centripetal force. This is true only for the satellite. Gravitational force वैसे बराबर होता है Gm1 m2 over r square के. यहाँ पर एक मास है कैपिटल M और एक मास है स्मॉल m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से वो है सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो r है. ठीक है. where centripetal force is equal to mv square over r. Now please try to understand one thing. पहली बात तो ये कि वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 और r स्क्वायर होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है वेरिएबल कि अगर उन्होंने एक मास को कैपिटल m और एक को स्मॉल m दिया हुआ तो फिर जाहिर सी बात है अब आप Gmm ही लिखोगे ना. दूसरी अहम चीज समझ लें, ग्रेविटेशनल फोर्स में जब आप Gmm ओवर r स्क्वायर लिखते हैं तो इधर r का मतलब है सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, वेयर एज सेंट्रीपिटल फोर्स में r का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. यहां पर मजे ही मजे, टेक्निकली जो दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है वही सर्कुलर पाथ का रेडियस है. आप समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने इसको भी r लिखा हुआ है, इसको भी r लिखा हुआ है, और टेक्निकली दे बोथ आर द सेम थिंग. इसलिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ी देर में कर भी दूंगा. अच्छा, अगेन यहाँ पे जो स्मॉल m होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r में m का मतलब वो मास होता है जो घूमे चक्कर खाए, जो एक्चुअली ऑर्बिट कर रहा होता है. तो इट्स द स्मॉल मास m विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लैनेट और अ स्टार. तो mv स्क्वायर ओवर r में हम स्मॉल m यूज करेंगे. समझ रहे हो आप मेरी बात? सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज Gmm ओवर r स्क्वायर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर ओवर r. समझ रहे हो आप मेरी बात? अब यहाँ पर क्या होगा, m इज मास ऑफ द सैटेलाइट, कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच
द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो छोटे टिड्डे मासेज है राइट साइड पे और राइट हैंड साइड पे, इन दोनों का इंतकाल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नीचे इस सर से स्क्वायर और आर भी वफात पा जाएगा, एंड आई विल लेफ्ट विद जी एम ओवर आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ से मुझे v की इक्वेशन मिल जाएगी एज कैपिटल जी एम ओवर आर। प्यारे बच्चों, ये जो हमने स्पीड की इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को कहते हैं द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, और एन इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सैटेलाइट सर्कुलर पाथ मेंटेन करे, तो आपको एक मखसूस स्पीड के साथ सैटेलाइट को छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि उसकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उस पॉइंट पर अवेलेबल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप जिस प्लैनेट के अराउंड घुमाना चाहते हैं, अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट कराना चाहते हैं, उस प्लैनेट का मास क्या है, कैपिटल एम, और ये बता दें कि आप किस रेडियस पे घुमाना चाहते हैं। तो जब ये दो चीज़ें पुट कर देंगे तो इस फॉर्मूले में रख के हम आपको ये बता सकते हैं कि आपका सैटेलाइट जब उस जगह पर पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना सैटेलाइट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च, सैटेलाइट में सारी गेम लॉन्चिंग की होती है। एक बार सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, एक बार वो सीन ऑन हो गया कि उसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड थी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको वहाँ पे मिल गई, तो उसकी लाइफ सेट है। 10-15 साल तो छुट्टी आराम से उसकी घूमता रहेगा। तो ये स्पीड की जो इक्वेशन है ना, v इक्वल स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर, ये आप देखेंगे नासा की वेबसाइट पे भी, जो बिल्कुल फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, जो बच्चे शौकीन होते हैं, तो नासा ने उनके लिए छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हुए, तो वहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि ऑर्बिटल स्पीड और सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें, और जस्ट राइट ऑल की चैट, तो फिर और मज़े की बातें करते हैं आपसे। देखो बेटा, दुआ फारिया, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर में इस आर का मतलब है दोनों मास के बीच का डिस्टेंस, जिन दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ले हो उनके बीच का डिस्टेंस। एम वी स्क्वायर ओवर आर में आर का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा है कि जो दो मास के बीच का डिस्टेंस है वही सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, यहाँ पे भी आर लिख दिया। अब पता होना चाहिए कि उधर आर का क्या मतलब है और इधर आर का क्या मतलब है। बोलो ना। सैटेलाइट पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जी एन एस, बिल्कुल ऐसा है। होता ही है कि सैटेलाइट जब लॉन्च करते हो उस वक्त तो उसमें इंजन लगा हुआ होता है, लाइक जैसी बात है, लॉन्च करने के लिए उसका एक पूरा प्रोसेस है, किस तरह वो अपना वेट लूज कर रहा होता है, ऊपर जाते जाते अपने आप को लाइक रिड्यूस कर रहा होता है। और सैटेलाइट में थ्रस्टर्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम वो क्या कहते हैं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रस्टर्स वो होते हैं जो सैटेलाइट के एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि अगर कोई माइन्यूट पुश चाहिए, आपको फील हो रहा है थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो रहा है, और लाइक आप उसकी थोड़ी सी माइन्यूट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास थ्रस्टर्स होते हैं, लाइक जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं सैटेलाइट में ना, तो वो डिफरेंट एंगल्स पे पोजिशनड होते हैं, और वो यूजली सोलर पैनल्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो लाइक बट आप ये नहीं कर सकते हो ना कि एक सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई इंजन लगा हुआ है, वो तो ये काम ही नहीं कर सकता है ना। आप इतने सालों तक कैसे उसको फ्यूल प्रोवाइड करोगे, इतना फ्यूल लेके वो ऊपर जाएगा कैसे। सो what actually keeps the satellite in the circular path is the gravitational force. That's, और टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वर्क डन कुछ भी नहीं होता। लाइक ऐसा नहीं है कि एनर्जी कोई क्रिएट हो रही है, कुछ हो रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन भी नहीं करती है, और वो घूमता रहता है, ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना कम हो रही है, ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसलिए टेंशन की बात भी नहीं है। क्या आप बोलो ना कि सर ये क्या बात हो गई, ये इंजन भी नहीं चल रहा और ये घूम रहा है, तो भाई ये घूम तो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना, लाइक कोई एनर्जी गेन। हाँ हाँ, देखो होता ही है कि 10 से 15 साल बाद, जैसे वैसे सैटेलाइट में रेजिस्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होते हैं स्पेस पे, क्योंकि वो घूम रहा होता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस ज़रूर होते हैं, जिनका इम्पैक्ट आपको 8-10 साल बाद, 15 साल बाद वेयर एंड टेयर आना शुरू हो जाता है, और आपको पता लग जाता है कि भाई अब ये इस हालत में नहीं है कि अब इससे फर्दर कोई काम लिया जाए। तो वो थ्रस्ट, वैसे मसले की बात नहीं है। ठीक है भाई, v क्या है फारिया, v इज द स्पीड विद विच द मास इज ऑर्बिटिंग। सर्कुलर मोशन
पढ़ा था? फारिया, दुबा फारिया, आप लोग का टेस्ट सही रखा है ना मैंने ट्यूसडे को? प्लीज मेक श्योर यार आप लोग सारे ज़रा अच्छे से प्रिपेयर करके आओ सर्कुलर मोशन। हाँ, इस ट्यूसडे को कर लो, सही है। जिसको जो भी मिलता है, क्या लाइन्स है? जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मेरा मन सबको सब नहीं मिलता। इस लाइन्स की अच्छा अच्छा, हाँ याद, ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन बनाने बोलते हैं आपको, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन आ गई ना, तो अब कुछ ऐसी ज़रा डिस्कशन करते हैं, सही है। मेरे पास एक प्लैनेट है जिसका मास है m, और उसके अराउंड 3 सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है। एक सैटेलाइट का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2 और एक का रेडियस है, बोलो ना, r3, सही है। And it's very evident from the diagram that R3 is the greatest, R2 उससे छोटा, R1 उससे छोटा। Now my question is, out of these 3 satellites, which of the 3 will have the greatest speed? सबसे ज़्यादा speed किसकी होगी? The satellite on R1, the satellite on R2 or the satellite on R3, on the radius R3? है भाई, जल्दी जल्दी बताओ सारे। इन केस ऑफ अ सैटेलाइट, हाँ आप याद कर सकते हो कि ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है, मतलब ऐसे नहीं याद कर लेना कि बस ये स्पीड की इक्वेशन है, पूरा याद रखना कि इन केस ऑफ अ सैटेलाइट दिस इज द स्पीड ऑफ द, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है ना भाई। तो जिसका रेडियस सबसे कम है ना उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप कि ये न्यूमरेटर में और दूसरी साइड पे ये डिनोमिनेटर में, तो जब आप ये बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा है उसकी स्पीड सबसे कम है, तो v3 इज द लीस्ट, उससे ज़्यादा v2 और उससे ज़्यादा v1। समझे क्या ना समझे? अच्छा, एक बात बताओ, टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? R1 वाले को, R2 वाले को, R3 वाले को? द आंसर इज R3 वाले को, क्योंकि एक तो चक्कर बड़ा है, ऊपर से कम वक्त मूव भी स्लो कर रहा है। तो सर सबसे ज़्यादा चक्कर, समझ, मुझे A लेवल का कोर्स हो गया, ये कोर्स भी बड़ा है, तुम लोग पढ़ने भी दिल लगा के नहीं हो, समझ रहे हो? तो क्या होगा, लाइक ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा टाइम सबसे बड़े चक्कर को लगेगा, उससे कम उससे छोटे वाले को, और फिर एंड सो ऑन। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी? जिसका टाइम सबसे कम होगा उसकी एंगुलर स्पीड सबसे, बोलो क्यों? और क्या बात है, ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, अभी पत्थर मार के सर फाड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। जिसका टाइम पीरियड सबसे कम उसका एंगुलर स्पीड सबसे, भाई 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो आप बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हो कि हाँ भाई जिसका टाइम पीरियड सबसे कम होगा उसकी एंगुलर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम टाइम पीरियड किसका था? अंदर वाले का ना, सबसे ज़्यादा एंगुलर स्पीड भी अंदर वाले की। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी को? सारे मेरे साथ हैं? अब आते हैं एक प्यारी डिस्कशन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सही है, या सिंक्रोनस सैटेलाइट। देखो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, किसी के पास कोई टेनिस की या इस तरह की बॉल पड़ी हुई है? कोई ऐसी स्फेरिकल चीज?
ये कॉलेज में तो एक बच्चा जे डॉट का परफ्यूम लेके आया होता, वो ऐसा गोल था, हो गया सर इससे समझाया आप सर्कुलर मोशन, वो जो वसीम अकरम वाला था, ऐसा प्यारा मैंने समझाया सर्कुलर मोशन। अच्छा चले हम आपको अभी ड्राइंग से समझाते हैं। देखिए ये आप देखें, ये अर्थ है और ये बीच में ग्रीन वाला अर्थ है और ये रेड ऑर्बिट है जिसके अराउंड कोई एक सैटेलाइट है जो चक्कर मार रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अर्थ जो है ना वो है थोड़ा शरारती। एक चीज इसे कहते हैं पोल, अर्थ उस पोल के अराउंड नाच रहा है। द अर्थ इज डांसिंग अराउंड अ पोल, ऐसा ही सोनी ऐसा ही है ना, अर्थ स्पिन कर रहा है ना भाई एक पोल के अराउंड, पढ़ा है ना, इसी तरह दिन और रात होते हैं। तो एक तरफ अर्थ है जो एक एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है जिसको हम नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं, और एक अर्थ का इक्वेटर है। यू अंडरस्टैंड व्हाट एन इक्वेटर इज? ये डॉटेड लाइन से देख रहे हो, ये अर्थ का इक्वेटर है, ये वो पोल है जिसके अबाउट अर्थ क्या कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा, अर्थ खुद स्पिन कर रहा है और एक सैटेलाइट है जो उसके अराउंड घूम रहा है। अब डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट सैटेलाइट होंगे और डिफरेंट रेडियस पे उन सैटेलाइट का डिफरेंट टाइम पीरियड होगा। अभी हमने देखा पीछे, क्यों ना एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जाए जो 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर ले, जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 24 घंटा, यानी इक्वल टू द पीरियड ऑफ स्पिन ऑफ द अर्थ। ऐसा सैटेलाइट के साथ होगा क्या कि भाई जैसे जैसे लेट्स से लेट्स से मान लो यार ये अर्थ ऐसा स्पिन कर रहा है, ठीक है, एंड दिस माई हैंड इज द सैटेलाइट, ओके, और ये दिस माई, कौन सी फिंगर बोलते हैं इसको, बेबी फिंगर यही बोलते हैं ना। तो ये सैटेलाइट है, जब ये 90 डिग्री मूव कर ले तो सैटेलाइट भी 90 डिग्री मूव कर जाए, जब ये और 90 डिग्री मूव करे तो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ मूव कर जाए। जितनी देर में सैटेलाइट अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करे उतनी देर में ये भी अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले। तो ऐसा सैटेलाइट अर्थ से स्टेशनरी मालूम होगा, यानी आपको लगेगा 24 घंटे आपके सर पे ही खड़ा हुआ है वो, ऐसा ही ना। जियो माने अर्थ, स्टेशनरी माने रुका हुआ। तो अगर सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है तो उसके साथ साथ अर्थ भी घूम रहा है और उसी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, उसी पीरियड ऑफ रोटेशन के साथ घूम रहा है, उसी दिशा में घूम रहा है, और आपका सैटेलाइट बिल्कुल उस इक्वेटर के सर पर है। हम कहते हैं ये सैटेलाइट सिंक्रोनाइज हो गया। क्या हुआ? सिंक्रोनाइज हो गया अर्थ की स्पिन के साथ। तो इस सैटेलाइट को हम कहते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस सैटेलाइट। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? अभी मैं लिखता हूं, फिर अभी आपसे पूछते हैं। तो एक ऐसा सैटेलाइट जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हो उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट रिमेन्स एट द सेम पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जब उसको देखोगे तो तुम्हें लगेगा जब तुम्हारे सर पर ही खड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा जैसे मूव ही नहीं कर रहा। तुम 30 डिग्री मूव कर रहे हो तो वो भी 30 डिग्री मूव कर चुका है, तुमने 90 डिग्री मूव किया तो वो भी 90 डिग्री मूव कर रहा है। तो तुम्हारे साथ ही साथ लट्टू हुआ है वो सैटेलाइट, जहां जहां तुम जा रहे हो वहीं वहीं तुम्हारे सर पे खड़ा हुआ है। वी कॉल दैट सैटेलाइट एज द, बोलो, as the geostationary satellite or the synchronous satellite. The satellite in a geostationary orbit remains at the same point above the Earth's surface with an orbital period of 24 hours. कि उसका चक्कर मारने का समय कितना है? 24 घंटा। Orbiting from west to east. अर्थ भी west to east ही स्पेन करता है, ठीक है ना, तभी सूरज निकलता है लाइक ईस्ट से। Orbiting from west to east डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, एकदम इक्वेटर के सर पे खड़ा हुआ होगा। हैव द एंगुलर स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन एज दैट ऑफ द अर्थ,
और जिस दिशा में अर्थ स्पिन कर रहा है उसी दिशा में ये भी स्पिन कर रहा है। एग्जाम में ये सवाल अक्सर 2-2, 3-3, 4-4 मार्क का पूछते हैं, सबसे ज़्यादा 3 मार्क का पूछते हैं कि बताइए व्हाट इज मेंट बाय अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आप बता लीजिएगा क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स अबव द अर्थ्स इक्वेटर, या अभी लेट्स अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे किसी प्लैनेट के साथ हो सकता है, इसीलिए उसको इन जनरल सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। बट जियो स्टेशनरी वुड बी अबव द अर्थ, इट इज गोइंग टू स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड एज दैट ऑफ द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अर्थ, ताकि वो अर्थ के सरफेस से जब भी देखा जाए तो स्टेशनरी मालूम हो। क्या आप तमाम खवातीनों हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं? सैटेलाइट से सरफेस फ्लैट नहीं दिखता, पूरा गोल अर्थ नजर आता है भाई, सैटेलाइट थोड़ा ऊपर होता है। अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, अर्थ टिल्टेड का मतलब स्पेस पे टिल्टेड तो उसको बोलोगे, असल में वो जिस एक्सिस के अबाउट सन के अराउंड घूम रहा है ना, उसमें थोड़ा सा टिल्टेड है। तो हम लेकिन टिल्टेड अर्थ अगर फॉर एग्जांपल यूं हो तो फिर हम सैटेलाइट भी यूं ही रखेंगे ना, सैटेलाइट तो अबव द इक्वेटर ही रहेगा ना। हाँ, आज से ये स्टेशनरी मालूम होगा क्योंकि उस हाँ इक्वेटर पे घूमना जरूरी है, मतलब किसी पॉइंट पे हो सकता है ना, वो तो स्टेशनरी रहेगा, मतलब स्फीयर के एक्सिस जरूरी थोड़ी मैटर करे, आप यहां रखते हैं यहां नहीं नहीं ना, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचा जाएगा फिर वो, इट हैज टू बी अबव द इक्वेटर। सर इट इज सीन एज स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ, यस ईमान बिल्कुल ऐसा ही है सर। सैटेलाइट तो अर्थ के ऊपर नहीं लग रहा है था ड्राइंग में, इट लुक्स लाइक इट्स साइड ऑफ द अर्थ। 3D बनाने की कोशिश की है ना 2D सरफेस पे। अच्छा प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन के 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर्कुलर मोशन इन्वॉल्विंग ग्रेविटेशन, समझ सही है ना? तो सर्कुलर मोशन को तो जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूले हमें रिकॉल करने पड़ेंगे, सारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, सेंट्रीपिटल फोर्स के, स्पीड, एंगुलर स्पीड, ये सब एकदम भूलने वाला सीन नहीं है, ठीक है। और ग्रेविटेशन में भी तक हमने 2 फॉर्मूला पढ़ लिया, एक तो सिंपली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस व्हिच इज F = gm1 m2 और r², और एक ऑर्बिटल स्पीड। ये जो स्पीड की इक्वेशन है कहीं भी मत इस्तेमाल कर लेना, ये सिर्फ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट की, ठीक है भाई। अब आपको एक छोटी सी डेरिवेशन कराते हैं, छोटी सी चीज दिखाते हैं, बड़ा एग्जाम में ये भी पूछते हैं ना। फॉर अ सैटेलाइट ऑफ मास m, for a satellite of mass m orbiting around a planet of mass capital M on an orbital radius r, in the influence of the gravitational force, वो अंडरस्टूड सी बातें लिखने की जरूरत भी नहीं थी। Deduce an equation for orbital period capital T of the satellite, सैटेलाइट के टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाए। अब हमें पता है सैटेलाइट के बारे में एक ही बात, वो ये कि इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज सर्विंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा ही है ना। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमारे पास 2 ऑप्शन, एक ये कि हम gmm/r² को ले लें mv²/r के बराबर, या हम ले सकते हैं gmm/r² विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल mr²। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा वाला यूज करना चाहिए, लेफ्ट वाला के राइट वाला? मेरे ख्याल से हमें यूज करना चाहिए mr²। बोलो क्यों? क्योंकि सर ओमेगा = 2π/T। सर हमें टाइम पीरियड की इक्वेशन चाहिए ना, तो फिर ओमेगा यूज करना ताकि वहां से टाइम निकल सके, समझ रहे हो ना? तो मैं लिख देता हूं, दिस इक्वेशन विल नॉट बी यूज्ड, but we prefer to use this equation because we can use 2π/T to have an equation in terms of capital T which is time period। एग्जाम में एग्जामिनर को समझाने मत बैठ जाना, ये इसलिए लिख रहा हूँ कल को नोट्स रिवाइज करो तो ध्यान में रहे कि सर ने ये इक्वेशन क्यों यूज की थी और ये क्यों नहीं यूज किया था। तो अब अगर मैं लिखता हूं ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज gmm/r² एंड दैट इज इक्वल टू mr², तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2π/T होल, ऐसा ही है। फिर
वही बात वही किस्सा पुराना निकला, ये दोनों m का इंतकाल हो जाएगा सबसे पहले। जी एम ओवर आर स्क्वायर आर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, बोलो क्यों? ये वाला r यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके डिवाइड हुआ, ऑलरेडी आर स्क्वायर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, आर क्यूब बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे 2 का स्क्वायर, 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और नीचे वाले टाइम पीरियड का स्क्वायर टी स्क्वायर। मुश्किल तो नहीं है, इजी पीजी लेमन फ्रीजी। अच्छा, फिर टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम इंटू आर क्यूब। समझ लो, ये आर क्यूब इधर था, इधर चला गया भैया, राइट साइड पे चला गया तो न्यूमरेटर में आ गया, और ये जी एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई, जीएम का रूट क्या हो जाएगा? रूट जीएम। आर क्यूब का रूट क्या हो जाएगा? आर की पावर 3 अपॉन पावर 3 ऑलरेडी है ना, रूट का मतलब पावर 1/2, आर की पावर 3/2। तो इस तरह हमने टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट की इक्वेशन बना दी कि एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट जिस प्लैनेट के अराउंड घूमे, चक्कर खाए, जिस प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, उस प्लैनेट का मास क्या है, और जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का बोलो रेडियस क्या है। समझ लो, बिल्कुल आती है, बहुत बार आती है, बार बार आती है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी गई है एग्जाम। कभी यूं पूछते हैं, कभी ऐसे बोल देते हैं कि प्रूफ कर दें, फॉर अ सैटेलाइट टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या करोगे, आप ये इक्वेशन यहां तक बनाओगे, फिर आप 4 पाई स्क्वायर ओवर जीएम, आपको पता है कांस्टेंट है भाई, 4 पाई स्क्वायर तो है ही कांस्टेंट, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन प्लैनेट जिसके अराउंड आप मल्टीपल रेडियसेस पे घुमा रहे हो सैटेलाइट को, प्लैनेट का मास तो नहीं चेंज हो रहा है ना, वो भी फिक्स है, तो ये हो गया कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर और आर क्यूब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो कभी कहते हैं प्रूफ कर दें, ये केप्लर्स लॉ है, इस नाम से नहीं पढ़ाते हमारे सिलेबस में। मुझे याद है जब मैं अपने स्पेस साइंसेस के एमफिल के एंट्रेंस टेस्ट में गया था तो उसमें उन्होंने पूछा था कि टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मैंने कहा चलो 6 साल से ये पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो काम आ गया मेरे अपने एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये उन्होंने वहां पे भी पूछा था, दिस इज अ वेरी फेमस रिलेशनशिप, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट एंड द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। प्यार हो रहा है फिजिक्स से, प्यार हो रहा है, समझ आ रहा है सबको? अबे ये पूरी डेरिवेशन है क्या इसमें, एक ही 3 लाइन की तो डेरिवेशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख दिया, उसके बाद से सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया और टाइम को सब्जेक्ट बना दिया। इंसान बनो तुम लोग, इसमें मुश्किल क्या है? यू कैन द बिग बॉयज ना यार, बेटू में आ गए, चौड़े हो जाओ अब तो। दुआ वांटेड टू सी द प्रीवियस स्लाइड, ये देखना चाह रही हैं आप दुआ? जिसको जो Are you all with me? What's ओह, जज तो नहीं करोगे मुझे? जोक सुना दूंगा, जज कर लो यार तुम लोग। क्या लिखा हुआ है ये? अरे ये आतिफ असलम का वो गाना है, तेरा होने लगा हूँ। 12.99 है ना, बहुत जल्द तेरा हो जाएगा ना राउंड ऑफ होने के बाद। तो क्या यार, जो भी समझाना पड़ता है। सॉरी गाइस, प्लीज डोंट जज मी ऑन दीज थिंग्स, इलाज चल रहा है मेरा। अच्छा, अगर यहां तक सारे क्लियर है तो अब बताते हैं, कैन एवरीवन प्लीज? बहुत ठंडा था। तो ये अच्छा भाई,
चलो थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं. What is the currency that we use on space? What is the currency that we use on space? Starbucks. ये अच्छा लगा. ये अच्छा लगा. Starbucks. पिछले वाले ज्यादा खराब हुई Good comeback, good comeback. Guys, at least appreciate me, okay? Like, some Starbucks, Bucks, Starbucks. और नहीं समझा. सही है. बायो वाले बैठे ना, कोई बायो वाले. बायो वाले. You all know Rihanna, the singer, ना? सही है. So Rihanna was once performing on in front of a huge crowd, and she became the real powerhouse of the crowd. So she was named as Mitochondriana. Oh. चलो भाई, इससे पहले ये तुम टीचर ही चेंज कर लो, आगे आ जाते हैं. ठीक है. तो अब विवा, गुड वन. लेट मी बाय माय लाइफ फ्रॉम दैट करेंसी. ठीक है. अच्छा, अब आ जाओ बहुत कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पे गाइस. बहुत ये अब एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन. देखिए, if you want to send a satellite, okay, around any planet, तो आपको एक चीज समझना होगा. वो जो मैं इतनी देर से एक शेर बार बार एक गाना गा रहा हूं ना, जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मेरा मन मुझसे बोले सबको सब नहीं मिलता. वो असल में मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा था कि व्हेन यू लॉन्च अ सैटेलाइट, तो एक सैटेलाइट की स्पीड और रेडियस दोनों आपके पसंद की नहीं हो सकती. ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है. देखो, एक तो होता है ना, आपने एक वजन बनाना सीख ली, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, भी क्वेश्चन भी कर लेंगे. अब थोड़ा ना गेम समझो रही. बहुत मजे का कॉन्सेप्ट. एक सैटेलाइट जब आप किसी प्लैनेट के अराउंड भेजते हो ना, तो या तो आप रेडियस आप डिसाइड कर लो कि यार जो मेरा सैटेलाइट है ना, मुझे इस रेडियस पे चाहिए. तो अब आप स्पीड आपने डिसाइड कर, रादर उस रेडियस पे जो आपने डिसाइड किया ना, एक मखसूस स्पीड होगी जिसपे सैटेलाइट घूम सकता है. नहीं समझ आ रही है मेरे को. इमेजिन कह रहे हैं आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं से पार्को का हेड हूं, और मेरा काम है लॉन्च करना. क्या लॉन्च करना? सैटेलाइट लॉन्च करना. आप आते हो और आप मुझसे कहते हो यार हम चाहते हैं ना एक सैटेलाइट हो जो इस रेडियस पे ऑर्बिट करे. मैं बोलता हूँ ठीक है. फिर तुम बोलते हो और हम चाहते हैं वो इस स्पीड से ऑर्बिट करे. मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं. अगर रेडियस आपके पसंद का है तो स्पीड आपके पसंद का बोलो नहीं हो सकता. बिकॉज हर मखसूस रेडियस पर एक मखसूस स्पीड है जिससे सैटेलाइट को घूमना पड़ेगा अराउंड द प्लैनेट, क्योंकि वहां पे किसी के पप्पा नहीं बैठे हुए फोर्स लगाने के लिए. इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो यू गॉट एडजस्ट योर स्पीड एट दैट particular radius so that the required centripetal force at that point becomes equal to the gravitational force which is acting at that point. नहीं समझ आ रही है मेरी? आ रही है? या आप बोलो यार मैं चाहता हूं एक सैटेलाइट हो जो इस स्पीड से अर्थ के अराउंड घूमे. मैं बोलूंगा ठीक है. फिर बोलो और इस नहीं नहीं, अगर स्पीड तुम्हारी पसंद का है तो रेडियस तुम्हारे पसंद का नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड पर सैटेलाइट एक पर्टिकुलर रेडियस पर ही एग्जिस्ट कर सकता है. नहीं समझ आ रही है मेरी बात? समझ? अब गौर से सुनते रहना, गौर से सुनते रहना. No two satellite can have the same orbital radius around a planet if they are orbiting at two different speeds.
दो सैटेलाइट्स का सेम रेडियस नहीं हो सकता, एक प्लैनेट कह रहा हूं, अगर के वो दो अलग रफ्तार के साथ, दो अलग स्पीड के साथ घूम रहे हैं, या इसी को घुमा के बोलते हैं कि नो टू सैटेलाइट कैन हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड if they are orbiting in two different orbital radius around a planet. टेक्निकली ये एक ही बात है जो मैंने दो अलग अलग अंदाज से की है, सबको सब नहीं मिलता। इफ यू गेट अ रेडियस ऑफ योर चॉइस तो फिर स्पीड तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट with a particular angular speed, it must be rotating on an orbit with a particular value of orbital radius. अगर तुम चाहते हो कि सैटेलाइट एक मखसूस एंगुलर स्पीड के साथ घूमे, तो वो कहीं भी नहीं घूम सकता, वो एक मखसूस रेडियस पर ही घूम सकता है, अगर आप अपनी पसंद के एंगुलर स्पीड से घुमाना चाह रहे हो। अभी जो एक पूरा एक डिस्कशन मैंने आपके आगे रखा कि दोनों तुम्हारे पसंद का नहीं हो सकता, वो क्यों रखा है प्यारे बच्चों? ये इसलिए रखा है कि अभी हमने पढ़ा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर इस चक्कर मारे, ऑर्बिट करे कुछ इस तरह कि जब जैसे अर्थ जितनी देर में अपना चक्कर, अपना स्पिन कंप्लीट करे, वो सैटेलाइट भी अपना चक्कर कंप्लीट कर दे। यानी इट हैज द सेम पीरियड ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ द अर्थ पीरियड ऑफ स्पिन, ऐसे ही है ना? तो अगर आप चाह रहे हो कि एक सैटेलाइट 24 घंटे में अपना चक्कर कंप्लीट कर ले, तो वो सैटेलाइट कहीं भी नहीं हो सकता, एक मखसूस ऑर्बिटल रेडियस होगा जिसमें वो सैटेलाइट एग्जिस्ट करेगा। उससे अंदर आओगे तो टाइम पीरियड कुछ और है, उससे बाहर जाओगे तो टाइम पीरियड कुछ और है। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? कि सर वो जो अभी आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ाया, वो जिस ऑर्बिट पे होता है वो कोई भी ऑर्बिट नहीं हो सकता, बल्कि हर प्लैनेट के अराउंड एक मखसूस रेडियस का ऑर्बिट होगा कि अगर वहां पे आप सैटेलाइट छोड़ोगे ना, तो उसके जो घूमने का टाइम पीरियड है, उसके जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है जितने में वो अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, विच इज इक्वल टू द टाइम ऑफ द स्पिन ऑफ द प्लैनेट, वो एक पर्टिकुलर एक मखसूस ऑर्बिट पर ही होगा, ना उसके अंदर ना उससे बाहर। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज हमने असल में ये भी फिगर आउट करना है कि वो जो हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जहां पर अगर हम एक सैटेलाइट को छोड़ दें तो वो 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर ले, तो आखिर वो किस रेडियस पर है अर्थ के अराउंड? कैलकुलेट, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कैलकुलेट द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अर्थ का मास आप 6 एक्सपोनेंट 24 kg लेंगे, सही है? अब जरा देखो ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अभी जो हमने किया था वो ये कि आपको पता है भाई, देख सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हो या ना हो, सैटेलाइट है ना, इसका मतलब इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज gmm ओवर। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि यहां पे mv स्क्वायर ओवर r तो यूज ही नहीं कर सकते। दो वजूहत, एक तो टाइम पीरियड आपको पता है 24 घंटा, तो ओमेगा यूज करोगे ताकि 2 पाई/t में टाइम पीरियड पुट कर सको। दूसरा ये कि अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है ना, आपका सैटेलाइट उस स्पीड से नहीं घूमेगा, सैटेलाइट तो बहुत फास्ट घूमेगा। आपका अर्थ जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, सैटेलाइट को उस एंगुलर स्पीड से घूमना है, ताकि जब तुम अपना चक्कर कंप्लीट करो तो सैटेलाइट भी अपना चक्कर कंप्लीट कर ले। लीनियर स्पीड का तो बहुत फर्क होगा ना, सैटेलाइट तो बहुत तेजी से घूम रहा होगा क्योंकि उसका तो रेडियस बहुत बड़ा है ना, तुम्हारा तो छोटा सा रेडियस है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुमने हर हाल में जब टाइम पीरियड निकालना है फॉर अ सैटेलाइट, और पर्टिकुलरली जियो स्टेशनरी केस में, तो mv स्क्वायर और r तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे? mr ओमेगा
स्क्वायर। खैर यूज तो जो भी करो ये यूज नहीं होगा। स्मॉल एम बेचारे का इंतकाल हो जाता है पहले ही। आर स्क्वायर यहाँ है, वहां जाके आर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बेटा, आर क्यूब हो जाएगा। ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी होल स्क्वायर एज इट इज, जी एम एज इट इज। 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इक्वल जी एम, 24 घंटा। उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हाँ ऐसी बात है। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा जी एम टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर, डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर 4 पाई स्क्वायर। ऐसा ही है, ये आपने आर क्यूब को सब्जेक्ट बना लिया। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल जी इज 6.67 एक्सपोनेंट -11, कैपिटल एम इज 6 एक्सपोनेंट, बोलो ना, 24 मास ऑफ द प्लैनेट। टाइम पीरियड 24 घंटा है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले, 24 इंटू 60 इंटू 60। और बिकॉज टाइम के ऊपर स्क्वायर है ना, टाइम पीरियड के ऊपर, तो आप भी स्क्वायर लगा दें यहाँ पे, ओवर 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, क्यूब को हटाएंगे तो राइट साइड पे क्या लगाएंगे, क्यूब रूट, मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का मतलब 1/3। इस पूरे को सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है। अभी आप लोग के चैट की क्वेश्चंस लेता हूं, पहले जरा इसका आंसर बताना। हाँ, 4.2 इंटू 10 की पावर 6 या 7 नहीं होना चाहिए। 7 मैंने तो 7 होगा। उसमें सारे डिजिट्स हैं, मैं क्या काउंट कर। बेटा सारे प्लीज कैलकुलेटर यूज करके मुझे बताएं आर की वैल्यू क्या आ रही है, ऑनलाइन वाले भी बताएं, फिर अभी आपके क्वेश्चन भी लेता हूँ। 5 का आंसर आ गया 4.2 एक्सपोनेंट 7, 4.2 एक्सपोनेंट 7। एसन का भी आंसर आ गया, आप लोग बताएं भाई। यही आ रहा है। ये मीटर्स में, किलोमीटर्स में लोगे तकरीबन 42,300 किलोमीटर्स का जो रेडियस है, उस पर जो सैटेलाइट है ना अर्थ के अराउंड, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। उस पर जितने, उस रेडियस पे जितने भी सैटेलाइट है, इनफैक्ट 300 से ज्यादा सैटेलाइट है, हर कंट्री ने अपना अपना सैटेलाइट भेजा हुआ है, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई सबके पास। हमारा भी ये सुना काम नहीं करता है, राब्ता नहीं हो पा रहा है उससे, वह है हमारा। पहले जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर एक बात कर। रिकॉर्डिंग कैसे बंद होती, ये हो गया ना पॉज। असल में एक जमाने में हम, पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ प्रॉपर कंट्री, सही है, लाइक सपार्को जो हमारा था ना, इट यूज्ड टू बी अ थिंग। बड़े बड़े स्पेस साइंसेस की मीटिंग्स में ना, लाइक हमारे लोगों को इनवाइट किया जाता था। उस जमाने में लाइक तुम सोचो, हम जो सैटेलाइट भेजने हैं, वो लाइक ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स पे हम काम कर रहे होते थे, सपार्को की इमेज। फिर हुआ ये कि कुछ एक इदारा जो हमारे मुल्क में जिस चीज पे हाथ डालता है ना, उसका सत्यानाश हो जाता है, ठीक है ना। पिछले आई थिंक 15-20 सालों से उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संभाली, और उसके बाद से कद्दू कुछ नहीं किया हमने, सही है। जो टॉप लेवल के हमारे रिसर्चर्स थे ना, लाइक अब शायद कोई भी नहीं बचा होगा वहां पर, क्योंकि मेरे स्पेस साइंस में जितने भी जानने वाले लोग हैं जो हालात बता रहे होते हैं ना, एक जमाने में स्पार्को की इंटर्नशिप यूज्ड टू बी अ थिंग, भाई स्पार्को में इंटर्नशिप लग गई, ऐसा लगता है नासा में इंटर्नशिप लग गई है, सही है। अब नौकरियां मिल रही होती है, वो करने को तैयार नहीं है, हमें हट कौन करेगा नहीं। तो खैर, तो क्या आप लोगों को समझ आ गया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, और एक मखसूस रेडियस चाहिए होता है जिसपे वो घूमे एंड एवरीथिंग। याद, सॉरी, अब जरा चैट पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए उनको देख लेते हैं। अफान कहता है, जबीबा कहती है लेट मी बाय माय लाइफ फ्रॉम दिस करेंसी, चलो ये तो हो गया। सर व्हाई डज वन वांट टू एडजस्ट द रेडियस, वुडंट एनी रेडियस बी ओके। है ना, अब तुम्हें समझ आया लाइक रेडियस क्यों एडजस्ट करना है, बिकॉज अगर आप चाहते हो ना टाइम पीरियड आपकी पसंद का हो,
तो that can happen on particular radius only. अफान कह रहा सर दूसरा वाला समझाएं दोबारा। अफान कौन सी चीज की बात कर रहे हो बेटा दूसरा वाला? कैन यू प्लीज, मैं तुम्हें समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो, एक पॉइंट है जो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना, वो घूम रहा है यूं, और एक सैटेलाइट है वो घूम रहा है यूं। दोनों ने 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करना है, ठीक है। ये सैटेलाइट है, ये पॉइंट है एक्स जो अर्थ के सरफेस पे, और सैटेलाइट लेट से वाई। मुझे बताओ क्या एक्स और वाई की स्पीड सेम होगी अगर दोनों ने 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करना है? नहीं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है ना वो स्पीड नहीं लेते, हम एंगुलर स्पीड ओमेगा लेते हैं। टाइम पीरियड तो सेम है ना दोनों का, लेकिन लीनियर स्पीड भी दोनों की सेम नहीं है। दुआ फारिया, मेरी बात समझ आई? अच्छा, सही, ओके। एक मिनट, अनस थोड़ा सा परेशान लग रहा है जरा, गेट इट, चलो गुड है। अनस का एक सवाल है, जरा वो ले लेते हैं। अच्छा, आमने कह रही है सर वॉइस टाइम मल्टीप्लाइड बाय 62 टाइम्स। असल में 24 आवर्स है ना, पहले 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। ऐसा यूनिट इज सेकंड्स। अभी रुक जा, अनस का सवाल पढ़ने दो। ऑर्बिटल स्पीड और लीनियर स्पीड सेम है? हाँ बिल्कुल एक ही चीज होती है, ऑर्बिटल स्पीड इज द लीनियर स्पीड जिसको वी कहते हैं हम। सर किसी पर्टिकुलर स्पीड पे ही सैटेलाइट सर्कुलर मोशन करेगी, राइट? जरूरी तो नहीं कि वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करे। एंगुलर स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट रेडियसेस, बिल्कुल ऐसा ही है हानिया फारूकी। फॉर डिफरेंट सैटेलाइट्स इज डिफरेंट, बट वो सैटेलाइट जो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड है वो तो 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर रहा है ना, अर्थ भी 24 घंटे में चक्कर पूरा कर रहा है, तो ओमेगा तो है ही टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट ना। तो अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है ना, और जो आपके सैटेलाइट सिंक्रोनस सैटेलाइट का एंगुलर स्पीड है वो सेम। उसके अलावा कोई भी दूसरा सैटेलाइट आएंगे उसका एंगुलर स्पीड डिफरेंट होगा क्योंकि वो किसी और रेडियस पे होगा। सर अर्थ को स्पिन करने की एक्सेलरेशन कहां से? अच्छा अच्छा, चलो डैट इज अ डिस्कशन फॉर नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा सा बात हम इससे बात करेंगे कि आखिर जो अर्थ स्पिन करता है वो क्यों करता है, उसके ना तो मुझे थोड़ा स्टार्स और प्लैनेट की फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी कि वो किस तरह डस्ट पार्टिकल्स से मिलकर एक स्टार या एक प्लैनेट बनता था, और किस तरह एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वो स्पिन कर रहे होते थे। तो ये लाइक थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप सिलेबस है, डिस्कशन है, बट थोड़ी सी इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। कहाँ गया मोहिउद्दीन? समझ रहे हो? थोड़ा सा ना उसके लिए वो समझना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली रेडियस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है ना। स्पीड तो नहीं, यूजली टाइम पीरियड सिंक्रोनस के केस से मैटर करता है, अदरवाइज रेडियस ही मैटर करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। इज देयर एनी वे टू एडजस्ट स्पीड? हाँ थ्रस्टर्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, जो बिल्कुल स्पीड डायरेक्शन एडजस्ट करने के काम आते हैं। वो हम ज़ाहिर है यहाँ नहीं पढ़ाते। ओके एंड प्लीज। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।